learners, once again welcome back to my channel that is Eco Classes. Today we are going to study about the topic J.H. Bookie's dualism theory, which is also called as social theory of economic development. So without further ado, let's just start with today's session. Today we are going to study classical theory of economic development, and the name of the theory is J.H. Bookie's dualism theory, which is also known as social theory or social dualism theory of economic development. You can see on the screen. G.H. Bucke, he was a Dutch economist and has developed a social dualism theory applicable only to underdeveloped countries. So, my dear students, here we can understand that it is going to teach us only about the countries which are underdeveloped. So, this theory basically can be applied to the underdeveloped countries rather than the developed one. Bookie's theory of social dualism is a general theory of economic and social development of underdeveloped economies based primarily on his studies of the Indonesian economy, which means that G.H. Bookie focused totally upon Indonesian economy, the economic development of Indonesia. He was studying and researching about that economy, and from that research, from that study, he came out with this theory that is social dualism theory. In reality, if we'll see, we can come to know that this theory is applicable to many of the countries. In fact, most of the countries across the globe. Why is it so? Sooner you will come to know. A society is homogeneous where only one social system prevails. Generally, what happens? और जो सोसाइटी होती है जो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम फीचर्स तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे होती है जो कंट्री में वहां पे सिर्फ एक ही सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करती है ऐसा माना जाता है बट a society may have two or more social systems simultaneously. It is then a dual or a plural society. कहने का मतलब है जो सोसाइटी में वेरिएशंस है हेट्रोजेनिटी है अलग अलग फीचर्स अलग अलग आपको यूनिकनेस दिखने को मिलती है तो ऐसी सोसाइटी में दो या दो से ज्यादा टू और मोर सोशल सिस्टम्स माइट ऑल्सो प्रिवेल तो वैसी सोसाइटी का नाम क्या हम देंगे ड्यूअल और प्यूरल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू J.H. Bucke. So I hope it is clear to you why it is called as dual socialism, dual social theory or duality theory. Bucke reserves the term dual society for societies showing that a dual society is characterized by the existence of an advanced imported Western system and an indigenous pre-capitalist agriculture system. Dear students, please try to understand this and focus more upon it. What it is trying to make us understand that the dual society, whichsoever society that has dual society, or you can say two or more social systems, and which are running simultaneously. So ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सोशल सिस्टम चल रही है सोशल सिस्टम इन द सेंस कि यहाँ पे बुकी ने बोला है एक है टोटल ऐसे सिस्टम हमारी ऐसा सोसाइटी जहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट है प्री कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है जिसे हम ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं एंड दूसरा एक बार जो चल रहा है वेस्टर्न सिस्टम जो कि एडवांस इंपोर्टेड टेक्निक से भरा सिस्टम है एडवांस लेवल का सिस्टम है सो दिस इज हाउ ही हैज एक्सप्लेन अस कि ड्यूअल सोसाइटी चल रही है तो इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में ईस्टर्न आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल वे चलता है एक वेस्टर्न वे चलता है सो दैट इज ड्यूअल सोसाइटी विच इज नाउ इट इज कॉमन ऑलमोस्ट all the countries across the globe. So here, what he has talked about. So when we are talking about Bookie's theory, हमने क्या पढ़ा अब तक? He has talked about dual society. He has talked about one society which is pre-capitalist. Pre-capitalist समझते हो? Pre-capitalist और agriculture based society. जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम यूज होती है और एग्रीकल्चर वर्क होता है दूसरी उन्होंने बात की है एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज होती है मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजी और इससे हम जनरल सेंस में
वेस्टर्न सोसाइटी भी कहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी जहां पे ये दोनों है, देन वी कैन से इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म। एंड बस बेसिकली यही थियरी को उन्होंने नाम दिया है ड्यूअलिज्म थियरी या सोशल ड्यूअलिज्म थियरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक उन्होंने अपनी थियरी, जब वो इंडोनेशिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को रिसर्च कर रहे थे, समझ रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ध्यान देके ये समझ में लाया, और वही उन्होंने उनकी थियरी में भी लिखा। ईस्टर्न सोसाइटी एंड वेस्टर्न सोसाइटी करके दो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। when we are talking about the differences, number one, ईस्टर्न सोसाइटी में कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जबकि वेस्टर्न में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड, लो लेवल ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी वो सब कम यूज होती है। जबकि हम मॉडर्न की बात करें तो वेस्टर्न या मॉडर्न वर्ल्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ईस्टर्न या एग्रीकल्चर प्री कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यहाँ पे नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, एग्जिस्ट नहीं करता। तो वैसे यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है। ईस्टर्न में इट्स डोमेस्टिक, यानी कि बेसिकली ट्रेडिशनल वे से सारा काम होता है, whether it is manufacturing activity, production activity, distribution, selling, every single thing। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में इट इज इम्पोर्टेड सोशल सिस्टम, यानी कि आपने कहीं से वो पर्टिकुलर सिस्टम को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व किया है या इंपोर्ट किया है, किसी का आपने, किसी और देश का या किसी और सोसाइटी का आपने वो समझ के देख के अपने सिस्टम में इन्वॉल्व किया है, दैट वे इंडल्ज किया है, और फिर आप उसे फॉलो करते हो। फिफ्थ पॉइंट है, इट फोकसेस अपॉन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ईस्टर्न सोसाइटी या ओल्डन सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, तभी आप देखोगे कि पुराने जमाने में सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और वैसे सब कम रहता है। जबकि अभी क्या हुआ है, हाईली कैपिटलिस्ट है, प्रॉफिट ड्रिवन, और कैपिटलिस्ट यानी मोस्टली इंडस्ट्रियल ड्रिवन, या आप कह सकते हो कि बड़े बड़े मशीन्स यूज करते हैं। फिर आप कह सकते हो कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो कि इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनका एक ही विजन रहता है, प्रॉफिट प्रॉफिट ही कमाना है। मिनिमम कॉस्ट बेयर करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। फिर उससे क्या होता है, लेबरर्स की एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ जाती है, वो लोग उतना वर्कर्स को नहीं देते पैसे, सब्सिस्टेंस लेवल पे मिनिमम वो जो जी सके उतने ही पैसे देते हैं, एक्सप्लॉइटेशन लेबरर्स का बढ़ जाता है। तो ये सब हाईली कैपिटलिस्ट है, इसीलिए प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी भी वेस्टर्न सोसाइटी को बोला गया है। फिर यहाँ पे सिक्स पॉइंट कहता है, ईस्टर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका दूसरा नाम है ट्रेडिशनल सोसाइटी, यू कैन टेक इट दैट वे, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। People have limited needs and get satisfied the moment their immediate needs are fulfilled or met। दिया है, देखो, पुराने ज़माने में ये ट्रेडिशनल सोसाइटी या एग्रीकल्चरलिस्ट जो लोग होते हैं वो मेहनत पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मेहनत तो करते हैं पर साथ में उनकी जो नीड्स है, वांट्स नहीं, नीड्स जो है वो लिमिटेड है। और वो जैसे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं वो लोग खुद ही, जैसे ही उनकी इमीडिएट नीड्स मतलब खाना खाना है तो चलो मेहनत करके रोटी कमा ली, खाना बना लिया, खाना खा लिया, दैट सॉर्ट ऑफ नीड्स, तो वो फुलफिल हो जाए तो वो उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, वेस्टर्न सोसाइटी में अनलिमिटेड नीड्स, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, सो नीड्स वांट्स कंटिन्यूअसली मनी ड्रिवन रहता है एस्पेक्ट लोगों का। डिफरेंट कोऑपरेटिव्स ऑपरेट द इकोनॉमी, और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में। फिर ईस्टर्न सोसाइटी में प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि कैपिटलिस्ट कल्चर आया उसके पहले की बात की है, पहले ऐसा होता था, वैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे जेएच बुकी। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में हाईली कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ईस्टर्न या ट्रेडिशनल सोसाइटी में व्हेन अ प्राइस ऑफ कोकोनट इज हाई, कहने का मतलब है जब कोकोनट की प्राइस बढ़ जाती है, द चांसेस आर दैट लेस ऑफ द कमोडिटीज यानी कोकोनट विल बी ऑफर्ड फॉर सेल।
तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कोकोनट का भाव बढ़ गया है तो चलो उसकी सेलिंग कम कर देते हैं। दे ऑल वर्क कोऑपरेटिवली। वो सेलर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो ही समझ जाता है कि लोगों को ये महंगा पड़ेगा, तो हम वो नहीं करेंगे। तो प्रोड्यूसर या बायर का जो रिलेशनशिप है वो सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया पे चलता है, तो एक्सपेक्टेशन की यहाँ बात ही नहीं आती। खुद ही वो समझ जाते हैं और उसकी सेलिंग या उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसको भी तो महंगा पड़ेगा, और वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो कोई लेगा नहीं, या फिर दूसरों को भी वो एस्पेक्ट समझ में आएगा कि ये महंगा है तो नहीं लेना है। तो उस वजह से क्या होगा, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं ईस्टर्न सोसाइटी में। जबकि जेएच बुक ही कहते हैं, ये एग्जाम्पल उन्हीं की बुक से लिया गया है, वेन ऑफ प्राइस ऑफ कोकोनट इज हाई। जबकि कैपिटलिस्ट कल्चर में क्या होता है, वेस्टर्न सोसाइटी में, जब कोकोनट की प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज इज हाई, द चांसेस आर दैट मोर ऑफ द कमोडिटीज विल बी ऑफर्ड फॉर सेल। तो ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे टू अर्न हायर एंड हायर प्रॉफिट्स। दे डोंट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर, वो सोशल वेलफेयर में मानते ही नहीं। इनफैक्ट दे फोकस अपॉन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ गया। फिर 9th पॉइंट है, when wages are raised the manager of the estate risk that less of the work will be done। जब वेजेस बढ़ जाते हैं लोगों के, वर्कर्स के, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में माना गया है कि मैनेजर जो है वो रिस्क लेता है कि कम से कम काम थोड़ा हो पाए। इफ थ्री एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ 3 acres आर इनफ टू सप्लाई द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब कि एक 3 एकड़ जमीन है और उसी में से काम हो जाता है, फुलफिल हो जाता है फैमिली के नीड्स टू मतलब कि द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड, कल्टीवेटर विल नॉट टिल 6, मतलब कि 5 से काम हो जा रहा है, तो छठे की क्या जरूरत, तो छठा यूटिलाइज नहीं करेंगे, छठा जरूरत ही नहीं है, तो उसको हम खामखा वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे। when rubber prices fall, ये रबर जो होता है उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए, fall that is decreases, then the owner of a grove may decide to tap more intensively। यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए पूछा गया है, माना गया है। तो जब रबर के प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो अभी हमने देखा, तो वो लोग क्या करेंगे, उसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर ज्यादा इंटेंसिवली ध्यान देंगे, ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को फायदा होगा, कम प्राइस है तो। whereas high prices may mean that he leaves a larger or smaller portion of the tappable trees untapped। और अगर भाव बढ़ जाता है तो वो अनटैप रखेगा, वो ज्यादा रबर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को आगे जाके वो दिक्कत आएगी, पैसे कहाँ से लाएंगे, उस तरीके से। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में पूरा उल्टा है, when wages are raised the manager of the estate takes the risk and starts to work more। पर जब यहाँ पे वेजेस की बात करें, जब लगे कि वर्कर्स को वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मैनेजर क्या करेगा, रात दिन एक कर देगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा रिस्क लेगा और ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रहता है कि प्रॉफिट मुझे और ज्यादा कमाना है, उनकी ज्यादा वेजेस हो गई यानी मेरा खर्चा ज्यादा बढ़ गया, कैपिटलिस्ट के तौर पे बात कर रही हूँ। तो मतलब he will start working more and more। Example, if 3 acres are enough to supply the needs of the household, a cultivator will till the 6 to earn more profit and to get more money। मतलब 3 से काम हो जा रहा है फिर भी वो 6 तक पहुंचेगा। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट की लालच है, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। भले ही आपका काम 3 से हो जाए, पर नहीं, मुझे तो ज्यादा ज्यादा चाहिए। तो वै से उस टाइप की वेस्टर्न सोसाइटी में कैपिटलिस्ट कल्चर चलता है, लोगों का वैसा एटीट्यूड रहता है। फिर है 10th पॉइंट, ये जेएच बुकी के थियरी में से लिए गए पॉइंट्स हैं। ईस्टर्न सोसाइटी, दिस इज बिकॉज पीपल आर इन्फ्लुएंस मोर बाय सोशल रादर देन इकोनॉमिकल नीड्स। कहने का मतलब है यहाँ सोशल वेलफेयर पे फोकस है। वेस्टर्न में इट इज बिकॉज पीपल आर इन्फ्लुएंस मोर बाय कैपिटलिस्ट प्रॉफिट ड्रिवन नीड्स रादर देन सोशल वेलफेयर नीड्स। तो यहाँ पे तो हमने ये पढ़ लिया। फिर 11th है, गुड्स आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू their prestige value rather than value in use। It is therefore not surprising that Eastern economies are characterized by backward sloping supply curve of effort and risk taking। इसका स्लोपिंग ये ऐसे बैकवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में गुड्स आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू इन यूज। मतलब वैल्यू इन यूज मतलब कि इसकी ज्यादा मांग है, डिमांड है, इंपॉर्टेंस है, तो इसका ज्यादा प्रोडक्शन करो और प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, वैसे तरीके से यहाँ सोचा जाता है।
फिर ईस्टर्न सोसाइटी में नेटिव्स आर इग्नोरेंट ऑफ मार्केट चेंजेस, दे डू स्पेकुलेशंस रादर देन वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिट अर्निंग एंटरप्राइज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट है या दोज हु आर एम्प्लॉयड इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, वो लोग क्या समझते हैं कि मार्केट चेंज हुआ है तो स्पेकुलेशंस पे आज प्राइस बढ़ी है कल कम हो जाएगी, वैसे स्पेकुलेशंस पे ये ऊपर उनका वर्किंग जो है वो चलाते हैं। जबकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्या करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, और मार्केट ड्रिवन, वो लोग मार्केट को फोकस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉफिट फोकस करते हैं विद हाईएस्ट एम ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो वो लाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो करेंगे, और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे पैसे के ऊपर। बुकी रिफर्स टू 5 काइंड्स ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जेएच बुकी कहते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलप कंट्रीज में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। उन्होंने ये मेजर किया, मेजर इन द सेंस कि ये देखा होगा व्हेन ही वाज स्टडीइंग इंडोनेशियन इकोनॉमी। तो कौन से 5 टाइप के, तो उन्होंने बोला सीजनल, कैजुअल, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रेगुलर वर्कर, सीजनल यानी कि सीजन पर्टिकुलर हो तब काम मिलता है, बाकी के सीजन में घर बैठे रहते हैं। कैजुअल द सिमिलर वन, अनएम्प्लॉय, कैजुअल मतलब कभी कभी वर्क मिल गया कभी कभी नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रेगुलर वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स मतलब कभी कभी काम जो रेगुलरली करते हैं, कभी कभी वो कंपनी वाले प्रॉफिट नहीं कमाते तो निकाल भी देते हैं, तो उस तरीके के भी देखने को मिल जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द वाइट कॉलर, वाइट कॉलर मतलब वैसी जॉब जहाँ पे आपको डिग्निफाइड पोजीशन दी गई है पर उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखने को मिल जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूरेशियंस, तो ऐसे करके अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, और 5 टाइप की रहती है अंडर डेवलप कंट्रीज में, वैसे जीएच बुकी ने कहा है। ही बिलीव दैट इट इज नॉट विद इन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और वो कह के गए हैं कि ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है कि वो रिमूव करे ये ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को, एज इट वुड एंटेल अ फाइनेंशियल बर्डन फार बियॉन्ड द गवर्नमेंट मीन्स। कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, जेएच बुक कहते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में 5 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन से वाले, तो एक सीजनल है, एक कैजुअल, रेगुलर वर्कर्स का अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाइट कॉलर का एंड यूरेशियन का। फिर वो कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करे, क्यों, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहते, या फिर एक फाइनेंशियल बर्डन जो उनके हाथ के बाहर है, उनकी कैपेसिटी के बाहर है, ऐसा वो मानते हैं। तो मतलब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है वैसा वो कह के गए हैं। फिर कहते हैं इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड परचेसिंग पावर हैम्पर ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितना अच्छा बोला है देखो, एक तो अंडर डेवलप कंट्री है और यहाँ पे लोगों के वांट्स भी लिमिटेड है। लिमिटेड वांट्स से मतलब लिमिटेड परचेसिंग पावर, आप समझ रहे हो। अगर आपकी इच्छाएं लिमिटेड है, मुझे खाना चाहिए, मुझे घर चाहिए, चलो घर मिल गया आपको, तो वहीं पे आपके वांट सेटिस्फाई हो गए वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो अब क्या होगा, लोग और ज्यादा वांट्स को इच्छा ही नहीं करेंगे, तो मतलब उनके खर्चे जो है, परचेजिंग पावर है, एबिलिटी है कि मुझे खर्चा करना है, वो हैम्पर होगी, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे पैसे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरऑल हैम्पर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते पैसे, तो आगे जाके पैसे मार्केट में कैसे आप डालोगे, कैसे कोई वही पैसे से रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे कोई आगे इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री खोलेगा, कैसे टेक्नोलॉजी लाएगा, कैसे लेबरर्स को लाएगा, कैसे उनको जॉब देगा, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे एक साइकिल रहती है। सो दैट इज वाई इंक्रीज इन फूड सप्लाई, कहते हैं इंक्रीज इन फूड सप्लाई और इंडस्ट्रियल गुड्स। सपोज मान लो कि फूड सप्लाई की कमी है और फूड सप्लाई बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स को इंक्रीज किया है, विल ब्रिंग अ ग्लट ऑफ कमोडिटीज। मार्केट में कमी थी तो इंडस्ट्रियल गुड्स और फूड सप्लाई बढ़ा दिया है, तो अब क्या होगा, विल कॉन्सिक्वेंटली फॉल इन प्राइसेस। ये तो क्लियर है, जब मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी तो आपको पता ही है उसकी प्राइस घट जाएगी आगे जाके थोड़े टाइम के बाद। क्यों ऐसा होता है, बहुत ज्यादा गुड्स आ जाते हैं, आप एक नहीं हो हजारों लोग वैसे ही गुड्स बेच रहे हैं, सबको भाई अच्छे से कमाना है। तो उस टाइप की क्या होता है, जब गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस को कम होना पड़ता है या प्राइस कम हो जाती है, और प्राइस जब कम हो जाती है तो वो सेलर बेचारा उसको बेचनी तो है वरना जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएगी, तो उसको प्राइस ड्रॉप करके जो मिनिमल प्राइस है उससे भी कभी कभी कम या लॉस में जाना पड़ता है, तो इट विल लीड टू डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन की कंडीशन भी आ जाती है। पता चला।
This does not mean that बुकी is averse to all industrialization agriculture improvements. कहने का मतलब है जेएच बुकी ऐसा नहीं कहते कि इंडस्ट्री बंद कर दो या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट मत लाओ, पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है. रादर ही इज इन फेवर ऑफ स्लो प्रोग्रेस या प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन वो कहते हैं एक साथ आप इतना इंक्रीज इंडस्ट्रियल गुड्स या फूड सप्लाई मत करो. स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करो, एग्रीकल्चर को डेवलप करो स्मॉलर स्केल पे, एडेप्टेड टू द ड्यूअलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर्न सोसाइटी. यानी दोनों सोसाइटी को बेनिफिट रहे उस तरीके से स्ट्रक्चर को हेल्प रहे वैसा सोचो. द अर्ज फॉर डेवलपमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स. कहने का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट को जानबूझ के एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्री आप ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश करो, यू शुड इंक्रीज मोर इंडस्ट्रीज. नो, इट शुड नॉट, इट शुडंट बी लाइक दैट. According to J.H. Buki, the urge for development should be from the people themselves. Let the people realize what's the importance of industrialization, what is the importance of earning profit, how the social welfare can get along with the economical development through technological advancement. So that sort of should idea should be coming from the people themselves, according to G.H. Buki. New leaders must emerge who should work towards the goal of economic development with faith, charity, and patience. So here exploitation should not be there, and everyone should work with the social welfare aspect. So both sort of society should exist according to G.H. Buki, but he was of the opinion that let that come from the people themselves. Now, this sort of ideology was definitely criticized by many of the economists. The very first one who criticized that is Professor Higgins. Buki's theory of dualistic development has been severely criticized by Professor Benjamin Higgins on the following grounds. So, what are the following grounds? Let's just see one by one. Number one, wants are not limited in reality. G.H. बुकी हमसे कह गए हैं कि लोग जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में हैं उनके wants लिमिटेड है. घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, बस इनफ. एक एकड़ में काम चल जाता है तो दूसरा एकड़ नहीं यूज करेंगे लैंड का, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं. सो ये वहां पे ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे वॉन्ट्स आर नॉट लिमिटेड इन रियलिटी, ये हिगिंग्स कह गए हैं. विच मीन्स कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये कह के गए हैं कि ऐसा होता है कि वॉन्ट्स जो लोगों के हैं वो आप कह सकते हो कि खत्म हो जाते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक वांट खत्म होता है तो दूसरे आपके स्टार्ट हो ही जाते हैं. फिर सेकेंड बोला गया है कैजुअल लेबरर्स आर अनऑर्गेनाइज. कहते हैं कि जो कैजुअल लेबरर्स है जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, वो अनऑर्गेनाइज है, वो पैसिव होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया उन्होंने देखा होगा या इंडिया में और अदर नेशंस. पर रियलिटी में ऐसा नहीं है. They might not be fully organized in agriculture, traditional occupation, but may be fully organized in tea, rubber plantation, coffee plantations, as their trade unions are very stronger working for social welfare. तो ये भी एक देखने की बात है. G.H. बुकी कहते हैं कैजुअल लेबरर्स जहाँ पे अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अनऑर्गेनाइज रहते हैं, पैसिव रहते हैं, साइलेंट, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं होते. बट ये सच नहीं है. हिगिंग्स कहते हैं ऐसा हो सकता है आपको वो लगे कि वो एक पर्टिकुलर काम में अनऑर्गेनाइज है, पर ऐसा भी हो सकता है वो फुल्ली ऑर्गेनाइज देखने को मिले दूसरे काम में, जैसे कि टी प्लांटेशन हो गया, रबर प्लांटेशन या रबर टैपिंग हो गया पेड़ से, या कॉफी का प्लांटेशन हो. उन सब में क्योंकि उनके ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो उनके ऊपर काम करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं. काम नहीं मिलता तो उनको सामने से काम देने के स्कीम्स लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं. तो रियलिटी में ये कैजुअल लेबरर्स वाला गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिगिंग्स. और ये किसने कहा था कि कैजुअल लेबर्स अनऑर्गेनाइज है? G.H. बुकी ने अपनी थियरी में. तीसरा कहा गया है ईस्टर्न एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज इमोबाइल. ये तो बहुत समझने की बात है. कहते हैं कि जो पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी है या एग्रीकल्चर सोसाइटी बेसिकली है, प्री कैपिटलिस्ट भी बोल दो, वो इमोबाइल है. ये G.H. बुकी बोल के गए कि जो लोग पुराने ट्रेडिशनल सोसाइटी के वो एक ही जगह पे टिके रहते हैं, वो कहीं नहीं जाना पसंद करते. इन रियलिटी हिगिंग्स कहते हैं ये सच नहीं है, इट इज नॉट ट्रू.
People in search of better standard of living they often migrate commute to city और urban areas, जो कि हम आजकल भी देख रहे हैं। आपको जहाँ पैसा मिल रहा है, जॉब मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ाई करने के बाद, अब वहाँ पे कम्यूट करते हो, माइग्रेट करते हो या वहाँ सेटल होते हो। तो ये सिस्टम तो पूरी गलत है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी वाले लोग या ट्रेडिशनल सोसाइटी वाले कम्यूट नहीं करते, माइग्रेट नहीं करते, एक ही जगह पे टिके रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फॉर जॉब्स एंड हायर इनकम टू बी अर्नेड दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। ठीक है, तो हिगिंस ने ऐसा कहा है। फिर चौथा पॉइंट है नॉट पिक्यूलर टू अंडर डेवलप कंट्रीज। अब बुकी कह गए अंडर डेवलप कंट्रीज में ये सब देखने को मिलता है। बुकी सेड ड्यूअल सोसाइटी आर फाउंड इन ईस्टर्न सोसाइटी बट इन रियलिटी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मिक्सअप इज सीन। कहते हैं कि ईस्टर्न सोसाइटी जहाँ होती है यहाँ पे ऐसे वेस्टर्न सोसाइटी देखने को मिलती है कभी ऐसे, पर रियल में देखो तो मिक्सअप है, सिर्फ एक ही सोसाइटी नहीं है। उन्होंने जो बात की है वो मिक्स रियलिटी में हिगिंस कहते हैं मिक्स सोसाइटी है, अभी भी एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं और वो डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग वेस्टर्न सोसाइटी को मानने वाले भी हैं। As per Professor Higgins, that's why Higgins came up with other theory of dualism and उन्होंने नाम दिया है टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म थियरी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। हिगिंस कह गए हैं कि जो थियरी है उन्होंने दी है तो उसमें थोड़े फेरफार करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, और उन्होंने इस वजह से नई थियरी लाई और उनका नाम दिया गया है टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म थियरी। तो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू कि हिगिंस की थियरी टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म थियरी क्यों आई एग्जिस्टेंस में, क्योंकि उन्होंने जेएच बुकी की जो थियरी है सोशल ड्यूअलिज्म उसको निग्लेक्ट किया, निग्लेक्ट ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि मिक्सअप है दोनों सोसाइटी का, एक ही नहीं एग्जिस्ट करती। फिर पांचवा पॉइंट है दिस थियरी ऑफ बुकी फेल्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिकल थियरी फॉर अंडर डेवलप्ड नेशंस फॉर दिस इकोनॉमी। ये तो सच है। ये जेएच बुकी ने अपनी थियरी में सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिकल पूरे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, उन सब की बात तो की ही नहीं है। फिर कहते हैं नॉट अ थियरी बट डिस्क्रिप्शन। बुकी ने अपनी थियरी पूरी डिस्क्रिप्शन वे में ही समझाई है। डॉक्टर बुकी फेल्स टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्टिव यानी कि डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप इकोनॉमीज। वो फेल हो गई यहाँ पे कि एक प्रॉपर डिफरेंट वे में इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट कह के जाए, समझा के जाए, उनकी थियरी वहां पे फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज मियरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईस्टर्न सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है उसका डिस्क्रिप्शन ही देके गए हैं, इन विच ही ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द पिक्यूलर यूनिक फीचर्स जो है ईस्टर्न सोसाइटी के, वही समझा के गए हैं दैट मस्ट नॉट बी डेवलप ऑन वेस्टर्न लाइन्स, जो कि कहते हैं कि वेस्टर्न के ऊपर वो फोकस नहीं करते और वो सब। Book is contention that Western economic theory is applicable to Eastern society is based on the neoclassical theory, which has limited applicability even in the Western world। कहने का मतलब है कि ये थियरी बहुत लिमिटेड अप्लाई हो सकती है और वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर फोकस कम करती है। फिर कहते हैं टूल्स ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक थियरी यूज इन ईस्टर्न सोसाइटी। जेएच बुकी की थियरी में इसकी भी बात की गई है। Some of the tools of Western economic theory, underlying monetary and fiscal policies, and those aimed at removing balance of payment, disequilibrium, are applicable to Eastern society with slight variations. Professor Higgins believes that the solution to the problem of underdevelopment can be found by applying familiar tools of economic and social analysis within a model defined by appropriate institutional assumption। मतलब कि यहाँ पे fiscal policy, monetary policy, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना है, वो सब तो फोकस ही नहीं किया है। तो वो सॉल्यूशन कौन लाएगा, गवर्नमेंट का रोल क्या है, उन किसी की भी बात नहीं की है। सो दिस थियरी एट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड फेल्स। फिर कहा गया है दिस थियरी डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सी बुकी की थियरी सेंटर्स मोर ऑन सोशल कल्चरल एस्पेक्ट यानी सोशल वेलफेयर रादर देन इकोनॉमिक। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो देखा ही नहीं। ही रिगार्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स, बेसिकली 5 टाइप के उन्होंने बोल दिए, बियॉन्ड द रीच ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, जिसमें गवर्नमेंट के हाथ के बाहर की चीज है, एंड मेक्स नो इंटेंशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट विच इज अ डोमिनेंट फीचर।
कोई मेंशन ही नहीं किया है यहाँ पे कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर भगाए। डेंसली पॉपुलेटेड अंडर डेवलप इकोनॉमी हो तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर भगाए। इट इज अ बिग लैकुना इन बुकीज थियरी। तो यहाँ पे ये समझा के नहीं गए हैं। तो कहने का मतलब एक लैकुना एरिया देखने को मिल जाता है आपको, जो कि सच भी है। So this was all about J.H. Bookie's social dualism theory. I hope you have understood through this video, and I hope that it is definitely going to help you whether you are preparing for graduation, post graduation, or net examination. Thank you so much for listening to me. To like and subscribe my channel, that is Eco Classes, for further videos. Do hit the like button if you like my videos. Till the next time, keep watching, keep achieving. Thank you so much. Happy reading.